We have started with question number 9. Rahul and Harun are the two friends. The ratio of their ages is given to be 5:7. Yesterday I told you that whenever we are given the ratio of the two numbers, we take the numbers as x constant leke, right? So we'll let Rahul's age be 5x and Harun's age be 7x. Rahul's age be 5x, Harun's age be 7x. Four-year later, sum of their ages will be 56. अब बात हो रही है 4 years later, यानी कि आज से 4 साल बाद की. तो सबसे पहले रिलेशन क्या है उनकी एजेस में 4 साल के बाद, वो बात की बात है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दैट व्हाट विल बी देयर एज आफ्टर 4 years. तो लिखो, एक मिनट, एजेस आफ्टर 4 years, हेडिंग बना के एजेस आफ्टर 4 years, हेडिंग बना के सबसे पहले लिखो राहुल एज एंड देन हरून एज. 5x plus 4, 7x plus 4. राहुल की एज 4 years के बाद 5x plus 4 हो जाएगी एंड हरून की एज 4 year के बाद 7x plus 4. We all know that if today if a person is of 12 year, after 4 year he will be 16 year. 4 ऐड हो गया. अब देखिए रिलेशन क्या दिया हुआ है. He says that 4 year later sum of their ages is 56. According to question, उनकी 4 साल बाद वाली एजेस जो हैं उसका जो सम है इट इज गिवन टू बी व्हाट 56. सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 year, दोनों की जो 4 years बाद वाली एजेस हैं उसका सम हमें 56 दिया हुआ है. नाउ यू विल यूज अलजेब्रा. That in algebra we learned that like terms are to be added. That is 5x plus 7x is 12x. 4 plus 4 is 8. 56 minus 8. This is 4. हाँ जी बेटे. नहीं बेटे, गलती होने के चांसेस हो जाते हैं. आप प्लस करके लिखो. x की वैल्यू 4 आ गई. बट ही इज आस्किंग, ही सेज व्हाट इज देयर प्रेजेंट एजेस. देयरफॉर Rahul's present age is equal to 5x is equal to 5 into 14, that is 70 years. x की वैल्यू रिप्लेस कर दी. एंड Harun's, oh sorry 20. राहुल की प्रेजेंट एज हो गई 20 years एंड हैरून की प्रेजेंट एज हो गई 28. 7 multiplied by 4 is 28. Your name is? इधर से. Question number 10. Number of the boys and girls in the class are in the ratio 7:5. Boys ratio girls is given to be 7:5. Number of the boys and girls, its ratio is given to be 7:5.
So let number of boys is equal to 7x and number of girls is equal to 5x. जो बॉयज उधर पहला है, इधर पहला 7 है तो 7x हो गया. गर्ल्स सेकंड नंबर पे है तो इधर 5 सेकंड नंबर पे है तो 5x हो गया. What he says that number of boys is 8 more than number of girls. हमें एक सिचुएशन चाहिए होती है, वो हमें दी हुई है कि नंबर ऑफ बॉयज यानी कि 7x. सक्षम, राइट ऑन योर नोटबुक. Number of boys 8 more than number of girls. बच्चे, what's your name? क्या कह रहा है? अच्छा, ठीक. So number of boys is 8 more than number of girls. 7x is equal to 8 plus 5x. Let us solve it. 7x minus 5x is equal to 8. 2x is equal to 8. X is 8 over 2 comes out to be 4. And in the last he says find the total strength of the class. यानी कि उसके लिए हमें बॉयज का नंबर भी फाइंड करना पड़ेगा और गर्ल्स का नंबर भी फाइंड करना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा. सो नंबर ऑफ बॉयज 7x, 7 into 4, 28. Number of girls 5x, 20. So total strength 28 plus 20, that is 48. So Viren is there in the class. I would like to talk to him. Viren, unmute yourself. Viren, बेटे unmute yourself. Viren, unmute yourself. Viren, can you hear me? Please unmute yourself. Not to interfere in between. Viren, unmute yourself, bete. Viren, can you hear me? Bete, unmute yourself. I think he is not able to open. I just want to congratulate you. Yesterday you were not there in the class. You are the highest scorer of the class. 49 out of 50 you are scoring. You have scored now. So I just want to know where you have done the mistake, because I haven't seen your paper. And moreover, I want to congratulate you for the best performance, right? I don't know, you're not giving me any reaction. If you are giving me any reaction, only then I can understand that you are attending the class. Viren, at least give me some reaction so that I can realize that you are there in the class. Switch on your video. Chalo, anyhow, come there. So the total strength of the class is number of the girls plus number of boys, and that comes out to be 48. चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11. ये सब अब एजेस वाले क्वेश्चंस इकट्ठे आए हुए हैं. बेंचोंग्स फादर इज 26 years younger than Benchong's grandfather and 29 years older than Benchong. बेंचुंग के फादर बेंचुंग के दादाजी से 26 ईयर छोटे हैं और बेंचुंग से 29 इयर्स बड़े हैं. इसका मतलब फादर जो है उसकी एज बेंचुंग की एज पे डिपेंड कर रही है. फादर इज 29 इयर्स ओल्डर देन बेंचुंग. इसका मतलब हम सारी एजेस के बेस को, सारी एजेस का बेस बेंचुंग की एज को मान लेते हैं. राइट डाउन
let Benchung's age be x. Benchung's age be x. Then father's age. Father is 29 years older than Benchung. X plus 29. फादर जो है वो 29 इयर्स बेंचुंग से बड़े हैं एंड यंगर देन 26 ईयर यंगर देन बेंचुंग्स ग्रैंडफादर. अब फादर ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे हैं. इसका मतलब ग्रैंडफादर फादर से 26 ईयर बड़े हुए. तो फादर की एज में यू विल ऐड कितना 26. दैट विल बिकम ग्रैंडफादर्स एज, राइट. देखो ध्यान से, हमने बेंचुंग की एज को एक्सलेट किया. फादर बेंचुंग से 29 ईयर बड़े हैं और ग्रैंडफादर फादर से 26 ईयर बड़े हैं. इस तरह से हमने एजेस. इस क्वेश्चन में बच्चे सबसे बड़ी गलती एजेस लेट करने में ही कर देते हैं. आप जिसको बेस बनाओगे उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन चेंज हो जाएगा. अगर आप फादर की एज को एक्स लोगे तो बेंचुंग की एक्स माइनस 29 हो जाएगी और ग्रैंडफादर की एक्स प्लस 26 हो जाएगी. तो आपने देखना है कि आप किसको बेस ले रहे हो अपना. मैंने बेंचुंग की एज को लिया बेस ताकि सब जगह प्लस आता जाए. क्यों? क्योंकि फादर भी बेंचुंग से बड़े होंगे, ग्रैंडफादर भी. फादर बेंचुंग से बड़े दिए हुए हैं 29 इयर्स और ग्रैंडफादर फादर से बड़े दिए हुए हैं 26. So this is the way to let the ages. I can understand why your score is less in maths, because if in sitting in the class in front of me you are not involving yourself in the studies, so what you are doing at home you can well imagine, है ना बेटे. It will be difficult for you, I am telling you. Those whoever will be failing in the final exam, you know that in your class 8th B 10 students are failing in maths, and when in a final exam if you are getting failed, you have to appear in the reappear, and if you are again failing then you will not be promoted to 9th standard. And one thing more, आपको I don't know कि आपकी क्लास में अनाउंस हुआ, NAS का अनाउंस हुआ? कुछ नहीं हुआ? चलो लेट मी टेल यू. NAS का जो आपका एग्जाम 12 नवंबर को होना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंडक्टिंग NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे. तो इसमें क्या होएगा, आपको पेपर आएगा, मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे, बीच में सोशल के, साइंस के, एंड सम जनरल क्वेश्चन रिगार्डिंग योर स्कूल, दैट डू यू लाइक टू कम टू स्कूल, डू यू लाइक टू स्टडी, डू यू लाइक द मेथड ऑफ योर टीचर्स ऑफ टीचिंग, लाइक दिस. एक क्वेश्चन तो वो हो गए जिसमें आपने स्कूल के बारे में जनरली आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे. दूसरे होंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन. ठीक है. अब कल आपका एक टेस्ट आपको लिंक आएगा आपके क्लास के ग्रुप में, आपके जो भी आप, मतलब मैं ही मैथ्स पढ़ाती हूँ, मैं ही भेजूंगी. आई विल सेंड वन लिंक इन योर ग्रुप, मैथ्स ग्रुप, एंड व्हाट यू हैव टू डू, आपको साइंस, सोशल और चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश आपको बता देंगे. आपके टीचर्स ग्रुप में आ जाएगा, आपके क्लास इंचार्ज आपको बता देंगे. लिसन, गूगल फॉर्म में आपको एक लिंक आएगा, आपने उसको सॉल्व करके सबमिट करना है. 2 o'clock आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा. 2 o'clock आपको इट मीन्स आपको 4 लिंक आएंगे, एक मैथ्स के ग्रुप में, एक इंग्लिश के ग्रुप में, एक साइंस के ग्रुप में, एक सोशल के ग्रुप में. आपने हर एक ग्रुप में जाके लिंक पे जाके सॉल्व करके उसको सबमिट करना. ठीक है. बिकॉज हाँ जी कंपल्सरी है, इसका डाटा सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाना. अगर आप एब्सेंट होते हो तो आपके लिए जो है वो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी. यस, कल होएगा, कल 2 o'clock. हाँ जी. नहीं, अगर मैं आपको भेज रही हूँ तो मेरे पास आपके रिस्पॉन्स आई जाने. आप फिर भी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना. 10 क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क टाइम आपको लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने प्रैक्टिस करनी है. हाँ जी. हाँ, रख लेना आपके पास, इन केस कभी नहीं आता मेरे पास तो आपके पास हो. यस बेटे, इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सारे बच्चों के लिए ये कंपल्सरी है इसको अटेम्प्ट करना. हाँ जी जी. अब बाद में मैम जो 12
टेस्ट होगा वो हमने स्कूल में आके देना है कि वो भी गूगल फॉर्म में ही होगा? 12th, अच्छा लिसन, 12th नवंबर के टेस्ट आप 12th नवंबर का टेस्ट आपका स्कूल में ही होगा. दैट विल बी दैट यू कैन से इंस्ट्रक्शन विल बी फॉरवर्डेड टू यू आफ्टरवर्ड्स, बट राइट नाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर टुमारोज टेस्ट. नथिंग न्यू. जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आप पढ़ रहे हो, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. इट इज हाँ, it is compulsory to give this test. It is very important to give this test. हाँ, क्या नंबर का? सबके लिए इट्स इम्पोर्टेंट. हाँ, आपके सब्जेक्ट ग्रुप में आएगा. टाइमिंग 2 o'clock पे सारे टीचर्स डाल देंगे. आप एक करके दूसरा कर लो, फिर दूसरा करके तीसरा. 10-10 क्वेश्चन होंगे. 15-15 मिनट का एक टेस्ट है. लिंक विल सी, आप अपना करो. ठीक है, जब क्लोज होगा आपको पता चल जाएगा. यस, क्वाइट ऑल ऑफ यू. चलिए, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी, इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं हम. सम ऑफ देयर एजेस इज 135. सिट प्रॉपरली ऑल ऑफ यू. राइट ऑन योर नोटबुक साइड बाय साइड. सम ऑफ द एजेस कितना है? 135. दिस इज सम ऑफ देयर एजेस. ठीक है, ऐड कर दो. x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 135. x प्लस x 2x प्लस x 3x 29 प्लस 55 135. इनको ऐड कर दो. 84 135. 135 माइनस 84 17. x की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई. इन द लास्ट ही सेज फाइंड एज ऑफ ईच ऑफ देम. सो पहले तो मेंशन की एज x है, तो ये बन गई 17 years. फादर इज x plus 29, that means 17 plus 29, and it will be 46. And grandfather is 17 plus 55 62. 62 नहीं 72. ये आ गई हमारे पास ग्रैंडफादर की एज, ये फादर की, और ये आप चेक कर लो. यही डिफरेंस है जो दिया हुआ है. फादर बेंचुन से 29 इयर्स बड़े और अपने फादर से यानी कि ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे. ट्वेल्थ क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ. आज हमने 9th से शुरू किया है. 9th से 12th तक क्वेश्चन हो गए हैं अभी तक. आपको पता है सारे क्वेश्चन आपने दोबारा अपनी कॉपी पे करने हैं. ऑल आर होमवर्क. 10th आप अपने आप करोगे. दैट आई एम नॉट गोइंग टू टीच. सेम है एजेस वाला. लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13. A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and then 2/3 to the product, you are getting it to be minus 7/12. What is the number? हमें नंबर फाइंड करना है. अभी हमें स्टेटमेंट की तरफ ध्यान नहीं हम दे रहे. नंबर फाइंड करना है. हम नंबर को लेट करेंगे. लेट द नंबर बी x. Let the number be x. When you multiply it by 5/2, आप जब इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करते हो, multiply it by 5/2 and
add 2/3 to the product. The answer comes out to be -7/12. When you multiply it by 5/2, little last warning to you. You are not sitting properly. Where is your notebook? हाँ, इतने आप बोले हो कि आपकी चीजें कोई ले जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा. मल्टीप्लाई आपने उसको 5/2 से किया, जो प्रोडक्ट आई उसमें आपने 2/3 ऐड किया. द आंसर कम्स आउट टू बी -7/12. सॉल्व करना है. यस, सबसे पहले देखो 5 को x से मल्टीप्लाई किया, ये बना 5x/2. अब ये दोनों लाइक टर्म्स तो है नहीं, हम इसको उधर भेज देते हैं. -7/12 -2/3. राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स हैं, let us take their LCM. 12 will be the LCM. -5/4 after solving. This will be 5x. नीचे वाला 2 डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. You will be getting 5x is equal to -5/2. You want to find x? आपको x चाहिए. ये वाला 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो गया. x comes out to be -1/2. हाँ जी, प्रगति लिखना जरा. अमरजोत, रोल नंबर 2, 6, 14, 15, 19, 23, 30, 37, 38, 40, 41, 35. हाँ जी, अच्छा. Keep quiet, all of you. Note it down. Hurry up. Let us start with question number 14. Question number 14. Lakshmi's father अच्छा, Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations ₹100, ₹50 and ₹10. उसके पास कुछ नोट 100 रुपीज के हैं, कुछ 50 के और कुछ 10. बेटे कीप क्वाइट. मैंने अभी कुछ पूछ लिया, बीच में ना आता हो सही. फिर उसके पास कुछ नोट्स 100 रुपीज के हैं, कुछ 50 रुपीज के हैं और कुछ 10. Ratio of the number of notes is 2:3:4. रेशियो कितना है? 5.
100 के नोट्स की रेशो अगर देखें तो 2 उसका कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है, 50 के नोट्स की रेशो का नंबर 3 है कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर, एंड 10 का 5 है। तो 100 के नोट हो गए 2x, 50 के हो गए 3x और 10 के हो गए 5x। नंबर ऑफ, आप लिखो नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट बी 2x, 50 rupees note be 3x and 10 rupees note be 5x. 100 rupees note be 2x, 50 rupees note be 3x and 10 rupees note be 5x. आगे देखो, टोटल जो कैश लक्ष्मी ने जब काउंट किया उसके पास 4 लाख टोटल कैश आया। अब सबसे पहले आप एक चीज की तरफ ध्यान देना, ये 100 रुपीज वाले 2x नोट हैं, 50 रुपीज वाले 3x नोट्स हैं, 10 रुपीज वाले 5x नोट हैं। तो आई एम राइटिंग मनी फ्रॉम 100 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू, ध्यान देना जरा इस बात की तरफ वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, कि अगर आपके पास 100 रुपीज वाले 2 नोट हैं तो आपके पास कितनी मनी हुई, 200 मल्टीप्लाई बाय 2। इफ यू आर हैविंग 4 नोट्स ऑफ 100, हाउ मच अमाउंट यू विल बी हैविंग, 400। इसी तरह से अगर 2x नोट्स हैं 100 रुपीज वाले तो मनी होएगी 100 इंटू 2x, दैट इज 200x। 100 रुपीज की मनी जब उसने काउंट की तो उसके पास 200x मनी आई। नेक्स्ट, मनी फ्रॉम ₹50 नोट्स, 50 मल्टीप्लाई बाय 3x, 150x rupees, and money from 10 rupees notes, 10 into 5x, that is 50x. Sorry. ये जो मैंने राउंड में लिखी है ये मनी है। 100 रुपीज नोट से कितनी मनी आई, 50 रुपीज नोट से कितनी मनी आई और 10 रुपीज नोट से मनी कितनी। नाउ टोटल मनी इज इक्वल टू 4 lakhs। टोटल मनी कैसे बनेगी, जब वो 100 रुपीज वाले नोट्स की मनी, 50 रुपीज वाले नोट्स की मनी एंड 10 रुपीज वाले नोट्स की मनी को ऐड करेगी। दैट मीन्स 200x प्लस 150x प्लस 50x is equal to 4 lakhs. This becomes 400x equal to 4 lakhs. X is equal to 4 lakhs over 400. 1000. X की वैल्यू आपके पास 1000 आ गई आफ्टर सॉल्विंग। अब पूछा क्या है लास्ट में उसने, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डायमेंशन शी इज हैविंग। 100 वाले कितने नोट्स हैं, 2x, दैट इज 2 into 1000, कितने हो गए 2000। ये 100 वाले नोट्स, 50 वाले नोट्स 3x, 3 into 1000, 3000, एंड 10 वाले नोट्स 5x, 5 into 1000, that is equal to 5,000। थोड़ा सा मुश्किल है क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, थोड़ा अगर आप इसको समझ के अच्छे से करोगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। Is it okay? What's your name, second last name? Parthiv?
see. Come to question number 15. That is of the same category. Hanji, note it down. I'm waiting. आप ऐसे ऐसे तालियां बजाओ, फिर मैं ऐसे ऐसे बजाऊंगी, ठीक है? यस, हैव यू नोटेड इट डाउन? चलो, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15. मैंने आपसे पूछा टाइम, we'll continue tomorrow.